یورپی یونین کے وفد کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات کی۔ عدالت میں جا کے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے۔ جب عدالت میں آپ پروف نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگ عدالتوں کو گالی نکالتے ہیں۔ ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہم یورپی یونین کو کسی صورت میں ناراض نہیں کر سکتے۔ علی محمد خان کو تنبیہ کی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو عمران خان صاحب کے شدید مخالف صحافی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکومت نے تحریک لبیک کے خلاف پھر دھوکہ کیا، پھر تحریک لبیک کے جو اعلیٰ قیادت ہے ان کے خلاف کچھ ایف آئی آر کاٹی گئی۔ کن کن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی، حکومت کا کیا موقف ہے کہ ہم نے کیوں ایف آئی آر کاٹی، لیکن اصل حقیقت میں ان کے خلاف دوبارہ ایف آئی آر کی وجہ کیا ہے، یہ پوری ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، بشرطے کہ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ جب تک آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے آپ کو پوری حقیقت آپ کے سامنے نہیں آئے گی۔ لاسٹ ویڈیو میں نے دوستوں بتایا تھا کہ وفاقی کابینہ کا جب اجلاس ہوا تھا یورپی یونین کی قرارداد کے متعلق، تو اس میں دو واضح گروپ نظر آئے۔ ایک لبرل گزم تھا جو اسٹریم لیول پہ جا رہا تھا، اور ایک مذہبی تھا۔ ایک کی قیادت وفات چودھری کر رہے تھے اور دوسری کی قیادت علی محمد خان کر رہے تھے۔ تو عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا کہ جو مذہبی گروپ تھا اس کو تنبیہ کی تھی۔ اس کے اوپر آلریڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو جو بتانا ہے کہ وہ جو یعنی کہ جو دو گروپ تھے وفاقی کابینہ میں، جو لبرل گروپ تھا اس نے یورپی یونین کے وفد کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات کی، اور اس ملاقات میں ان لوگوں نے یورپی یونین کو وہ چیزیں بتائیں جو ان کو معلوم نہیں تھا۔ پھر یورپی یونین نے پہلے تو اپنی قرارداد میں یہ خدشات ظاہر کیے تھے اور ایک فرضی مطالبہ کیا تھا کہ حکومت پاکستان کو 295C اور 295B اور جتنے بھی گستاخ ہیں ان کو رہا کرنا چاہیے، لیکن اس وزیر کے ساتھ خفیہ میٹنگ کے بعد یورپی یونین نے باقاعدہ جو اپنے مطالبات ہیں وہ FATF میں ڈال کے شرائط کے طور پر پاکستان کے سامنے پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے ان علماء جو اکرام ہے تحریک لبیک ہے ان کے خلاف دوبارہ کیس ہوئے گئے تھے۔ یہ ہے حکومت کی پالیسی جس کا اصل چہرہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو دوستو، آج سے 2 دن پہلے جو تحریک لبیک کی قیادت ہے اس نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ حکومت ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس سے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے، اس لیے ہم بہت جلد آگے والے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ اس کو حکومت نے بنیاد بنا کر 4 جو تحریک لبیک کی اعلیٰ قیادت ہے ان کے 4 کے خلاف CDDA لاہور نے ایف آئی آر کاٹی، جس میں دہشت گردی کے دفعات ڈالے۔ ان میں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب ہیں، اس کے بعد غلام عباس فیضانی صاحب ہیں، اس کے بعد غلام عباس بغدادی صاحب ہیں، ظہیر الاسلام صاحب ہیں اور خرم ریاض صاحب ہیں۔ تو ان کے خلاف ایف آئی آر ڈالی۔ لیکن دوستو میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو کلپ دکھاؤں گا کہ جو عمران خان صاحب کے شدید مخالف صحافی ہیں، اینکر حضرات ہیں، جو عمران خان صاحب کے ہر بات کے اوپر تنقید کرتے ہیں، انہوں نے اس وفاقی کابینہ کا جو اختلاف تھا اور اس کو جیسے وزیر اعظم خان نے ہینڈل کیا، وزیر اعظم صاحب نے، تو ان لوگوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تعریف کی کہ عمران خان صاحب نے اچھا کیا۔ تو وہ صحافی ہے رؤوف کلاسرا، اس کی آپ ویڈیو دیکھو، پھر بعد میں جا کے میں آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ اس رؤوف کلاسرا نے جو انکشاف کیے ہیں ان میں مین پوائنٹ کیا ہیں جو عام عوام کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اس کے اوپر میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بات کروں گا۔ پہلے آپ وہ ویڈیو کلپ دیکھیں۔ اور خان صاحب نے بھی بڑے اچھے طریقے سے کنوے کیا اور اچھا کیا وزیر اعظم صاحب نے، عمران خان صاحب نے اس کو ٹیکل کیا، ہینڈل کیا۔ کل کیبنٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ وزیر ہیں جو کچھ ان کو مذہبی باتوں کو لے کر بڑے بمباسٹک قسم کے انتہائی خوفناک اس میں ایڈجیکٹو ڈالتے ہیں اور پھر وہ ٹویٹس کرتے ہیں۔ ان ٹویٹس کا جو استعمال کیا ہے یورپین یونین نے کیا، عامر صاحب جو آپ کے FTF جس کا ہم سنتے رہتے ہیں، انہوں نے ان منسٹرز کے ٹویٹس لیے، 1-2 وزیر ہی ہیں، ان کو ٹویٹس انہوں نے لیے ہیں، لینے کے بعد ایک نیا کوسچنر انہوں نے بنا لیا سر اس میں۔ اب یہ عمران خان صاحب کو رپورٹ دی کہ حضور آپ کے 1-2 وزیروں کے ان ٹویٹس کے بعد جنہوں نے اس میں کوئی مذہبی بنیادوں پہ کوئی بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے انہوں نے اپنے ٹویٹس کیے تھے، یورپین یونین ہیز اس کے سیریس کنسرنس کہ اگر آپ کی کیبنٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کی چیزیں
आग शिद्दत पसंदी को या इतना एक्सट्रीमिज़म को या एक्सट्रीम लेवल पर जाकर इवन मज़हब का इस्तेमाल करते हैं, तो पाकिस्तान को हमें जवाबात देने, जो 9 सवालात उन्होंने अलहदा भेज दिए जो मेरी इतला है करने। एक और ख़तून वज़ीर है, एक यूरोपियन यूनियन का, जो मेरे ज़राए कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन का एक वफ़द आया, उन्होंने अपने घर पर उनको खाना किया। अच्छा, उस खाने में उन्होंने खतून वज़ीर ने कोई अपनी तरफ से बताया कि हुकूमत पाकिस्तान में क्या क्या गलत चीज़ें पहले हो रही थी या हो रही हैं, और मैं कैसे उनके खिलाफ मैं लड़ती रहती हूँ, कैबिनेट में भी लड़ती रहती हूँ, फलां जगह फोरम पे भी लड़ती रहती हूँ। ये उन्होंने अपनी कारकर्दगी बताई सारी यूरोपियन यूनियन को। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना है कि इस जो रूफ क्लासरा कह रहा है, इसमें जो ख़ास चीज़ है जो आप लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर बात करना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। ये तो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि वफाकी काबीना में 2 ग्रुप थे। अभी डिटेल से रऊफ़ क्लासरा साहब क्या कह रहे हैं कि भाई 2 ग्रुप थे, वो नाम नहीं ले रहा था। एक ग्रुप में वफात चौधरी और शिरीन मज़ारी थी, दूसरे में अली महमूद ख़ान थे। और जिस औरत का वो जिक्र कर रहा था कि जिसने यूरोपीय यूनियन के वफद से मुलाकात की, तो वो शिरीन मज़ारी थी, वो इंसानी हकूक़ की वज़ीर है, उसने मुलाकात की। अभी इसमें सबसे ज़्यादा हैरानकुर और तशवीशनाक ख़बर ये है कि जब इमरान ख़ान साहब को मालूम हो गया कि मेरी वफाकी काबीना के इख्तलाफ की वजह से यूरोपीय यूनियन मज़ीद सवाल उठा रहा है, यूरोपीय यूनियन इससे खुश नहीं है, उसके तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ रहे हैं, तो उसके जो 2 ग्रुप थे, एक था जो स्ट्रीम लेवल पे जा रहा था, जो लिबरल था, यानी कि वफात चौधरी और शिरीन मज़ारी थी, और दूसरी साइड में अली महमूद थे। तो पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि इमरान खान साहब ने अली महमूद को रोका था कि आपको ट्वीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके ट्वीट की वजह से यूरोपीय यूनियन मज़ीद नाराज़ हो रहा है। अभी रूफ क्लासरा भी यही कह रहे हैं कि उसने अली महमूद खान को तंबीह की कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि ये वाज़ेह हो गया है कि लिबरलिज्म जो स्ट्रीम लेवल है, जो यूरोपीय यूनियन से खुफिया मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ ऐसे इंकशाफ कर रही है कि जो उनको पहले मालूम नहीं थे, और वो अपना क्रेडिट ले रही है कि मैं हूँ जो आवाज़ उठाती हूँ, मैं इनके खिलाफ आवाज़ वो करती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा है कि अच्छा, ऐसी बातें हैं जो हमको पहले भी मालूम नहीं है, यानी कि और जो पाकिस्तान में बढ़ा चढ़ा के उनको यूरोपीय यूनियन को बताया गया था। इसलिए ये एक पंजाबी की कहावत है कि कुत्ती चोरा नाल रली हुई है। ये चीज़ सब इमरान खान साहब के सामने वाज़ेह होने के बावजूद वो वफात चौधरी और शिरीन मज़ारी को वो तंबीह नहीं कर रहे, उनको रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, उनको बुरा भला नहीं कह रहे, उनसे यानी कि माफिया ताले नहीं कर रहे हैं, मजहबी जमात वालों से कर रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कि क्योंकि हमारे जो बाप दादा हैं वो आपकी वजह से नाराज़ होते हैं, इनकी वजह से तो वो खुश होते हैं। ये तो जितना भी ज़्यादा बोलते हैं उतना यहूद नसारा खुश होता है, आपकी वजह से यहूद नसारा यूरोपीय यूनियन नाराज़ होती है। तो हमारा तो मकसद यही है कि हम यहूद नसारा को नाराज़ नहीं कर सकते, हमारा तो मकसद ये है कि हम यूरोपीय यूनियन को किसी सूरत में नाराज़ नहीं कर सकते। तो यूरोपीय यूनियन ने क्या किया कि FATF के हवाले से उन लोगों ने और मज़ीद सवाल बढ़ा दिए। अभी वो जो शराइतें FATF की में बढ़ाई हैं वो तो अभी किसी ने नहीं बताई हैं, वो आने वाले वक्त में साबित हो जाएगा कि वो कौन है। लेकिन वो यकीनन, क्योंकि FATF का मकसद ही यही है, मैं इसके ऊपर दर्जनों वीडियो बना चुका हूँ कि इसका मकसद ही इस्लाम के साथ है, उलमा अकराम के साथ है, मदारस के साथ है, मस्जिद के साथ है। इनका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग से हरगिज़ नहीं है। तो जब उन्होंने देखा है कि इस्लाम के हक में, मज़हब के हक में, तहरीक लब्बैक के हक में जो वफाकी वज़ीर हैं वो भी मैदान में आ रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए यूरोपीय यूनियन ने मज़ीद शराइत रखी हैं। तो इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि आपको तहरीक लब्बैक के खिलाफ मज़ीद इक़दाम उठाने चाहिए, उनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसलिए दोस्तों कि जो तहरीक लब्बैक के कारकुन गिरफ्तार हैं, उनकी गिरफ्तारियां सुस्त रवि के शिकार हैं, और जो कारकुन गिरफ्तार हैं उनके अंदर मुख्तलिफ ज़राए से खबरें आ रही हैं कि उनके साथ तशद्दुद भी हो रहा है, उनके साथ जुल्म भी हो रहा है, और ये भी ज़राए से खबर मिल रही है कि कुछ इलाकों में मज़ीद गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन ये खबर तो बिल्कुल कन्फर्म है कि जो डॉक्टर शफीक अमीनी साहब की क़यादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन लोगों के खिलाफ तो CTDA की तरफ से ऑलरेडी FIR कट गई है, लेकिन उसका कुछ नहीं है। ये तो हुकूमत की जो इंतकामी कार्रवाई हैं सब लोगों को मालूम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों के ऊपर हमको पूरा यकीन है कि अदालतें उनको
बरी कर देगी, क्योंकि जब आप किसी से इंतकामी कार्रवाई करते हैं तो आपके पास पावर है, आपके पास हुकूमत है, आपके पास इख्तियार हैं, आपके पास अदारे हैं, अब तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अदालत में जाके आपको प्रूफ करना पड़ता है। जब अदालत में आप प्रूफ नहीं कर सकते तो फिर आप लोग अदालतों को गाली निकालते हैं, फिर अदालतों को बुरा भला कहते हैं। इसके ऊपर भी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि जब आप अपनी मर्जी से अदालतों को इस्तेमाल करेंगे तो फिर अदालतें बहुत अच्छी हैं, फिर वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला करती हैं। लेकिन अगर आप जब अदालतों को यानी कि मिसगाइड करेंगे, गलत उनके ऊपर इंतकामी कार्रवाई के केस बनाकर जब अदालतों में जाएंगे तो अदालतें तो सबूत मांगती हैं। जब अदालतें ऐसे लोगों को बरी करती हैं तो फिर कहते हैं कि आप अदालतें बुरी हैं, अदालतें सही फैसला नहीं कर रही हैं। तो दोस्तों, ये हुकूमत की जो पॉलिसी है वो सब लोगों के सामने आ रही है। हुकूमत नहीं चाहती, बल्कि कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि मजहबी जमात आगे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा मकसद ही यही नहीं है कि हमारा साथ रिजवी साहब या कोई मजहबी जमात वाला वज़ीर आज़म बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो चाहते हैं बन जाए, लेकिन पार्लियामेंट में हमारी शमूलियत, हमारा मेंबर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जितने भी लिबरल किस्म के हुक्मरान हैं ये अपनी मनमर्जी, अपनी मनमानी ना कर सकें, और ख़ास कर ये नामूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और ख़त्म नबुव्वत के ऊपर ये कोई कानून साजी ना कर लगे। इसलिए मजहबी जमात ख़ास कर तहरीक लब्बैक की पार्लियामेंट में मेंबरशिप होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये आप लोगों को हक़ाइक़ बताना बहुत ज़रूरी था। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक़ सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।